Gurube Gaurachandaya Radhikaya Tadani Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. So first of all, I offer pranams to our Gurudev, Om Vishnupad Vinati Swami Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Today is his Tirubhav Tithi, 14th, 15th. 14th. And today is also the Vyas Puja, the appearance day of Nitya-Lila Parishya Bhaktivedanta Bhaman Goswami Maharaj. So Vaishnavas, actually, everyone is a Vaishnava, but without the mercy of a Vaishnava, no one can become Vaishnava. By Sarup, everyone is servant of Bhagavan, servant of Vishnu. Without the mercy of the servant of Vishnu, we cannot become. What example? Some material examples are there to give us some idea. Every woman can give birth to a child without a husband, without assistance of a man, that potency not manifest. Every oyster can make a pearl, but without a little grain of sand in there, or the Swati Nakshatra, that potency not manifest. Then without worshipping Vaishnava, without serving a Vaishnava, we cannot become Vaishnavas. In fact, this Vaishnava Seva, Paramasili Prema-Latikaram, this root of Prema is Vaishnava Kripa, Vaishnava Seva. Indeed, one may Siddha Bhavati Nabhavet Sankshaya Chuta Sevana, Nishankshaya Parichaja Atmanarata. If one, Krishna says, if one serves me, he may or he may not achieve perfection. No guarantee. Sankshaya. Doubt is there. But Nishankshaya, if one serves a Vaishnava, there is no doubt he will achieve perfection. No doubt. So today is a chance to serve two Vaishnavas. These also not ordinary Vaishnavas, Param Vaishnavas. Pujapad Bhaman Goswami Maharaj, today is his appearance day. I heard in Devananda Gaudiya Math they would make big arrangements for Vyasa Puja. We are a small temple, but still 2-3 days before, everyone busy. Then big temple, imagine how much. And the night before Vyasa Puja, he would disappear. Where gone? No one knows. Someplace he would go. Because even though they are the most exalted, they don't think of themselves like that. So, Pujapad Trivikram Maharaj, towards the end of his pastime, they arranged also some Vyasa Puja. Some big seat and decorations. But Maharaj would not sit there. He sat on the ground and the pictures of his godbrothers he put on the Vyasa. So this way he gave great example. These days, someone very anxious to get Guru Puja. Someone very anxious, but this is not proper Vaishnava behavior. So Pujapad Bhaman Goswami Maharaj, he joined Gaudiya Math at a very young age. His uncle was Nrsimha Maharaj, he was sannyasi. His auntie is Sarojini, also disciple of Prabhupada. So from beginning he had this influence. At very young age he joined the Gaudiya Math. So he said his seva was to
These days we don't see it, but still, in old-fashioned, in Chaitanya Math they still do. Sannyasi get little seat, little wooden stool, and they sit on that and take prasad. So he would put the seeds, the leaf plates, and the salt, chili on all Vaishnava's plates. And after they would finish, he would collect all the leaf plates and he would eat that. So he would say, this body is made of Vaishnava prasad. He would say like that. So from young age, he got the mercy of Prabhupada, but he would never, because he took Diksha from Bhakti Pragyan Kesava Maharaj, he never said, I am disciple of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. He never said like that. He not demand that respect. So very ideal. And he, from beginning, because he went to school, the Bhaktivinoda Institute, Param Gurudev was headmaster, like headmaster. So from childhood he get that association and very much detached to Bhakti Pragyan Kesava Maharaj. Therefore whole life he followed. Whole life. Whole life he followed him. Therefore Param Gurudev made him Acharya. But still, even though he was Acharya, he did not demand the respect of that position. He would give all power to his godbrothers, especially Gurudev. Any problem you I do not know anything, you ask Narayan Goswami. So even he would give Diksha. Before giving Diksha, he would go to Gurudev, do pranam. Even, what to speak of Diksha, before giving class, he would come to Gurudev. Please come give class. Gurudev said, no, I am sick. Oh, please, then I will go. Give me your blessing. So very much ideal behavior in every respect. They call it the encyclopedia of Vaishnavism. So memory, so nice memory. And his class, so Siddhantic, if you hear his class. And he had very much affection, so Gurudev wanted to show this relationship. And even though afterwards Gaudiya Vedanta Smriti, some problem came and they put Gurudev out. But Gurudev showed, no, that relationship you cannot break. Therefore, no, Gurudev disappeared on this day. Which is very astonishing. Huh? So what can we say about Gurudev? Everything here going on by his mercy. He was born on the bank of the Ganga, Tiwaripur, Brahmin village. Even now, 80% is Brahmin. Therefore, from early age, he had great attraction to Harikatha with his father. They would go to Harikatha, especially Mahabharata, Ramayana. Gurudev so much attached to Lord Ram in young age. So even when he joined the Gaudiya Math, his Gurudev would say, read Chaitanya Charitamrita. No more Ramayana. But Gurudev so much attached, so Chaitanya Charitamrita book would be outside, but inside Ramayana was there. He would read. Then one day he said, as young, he had darshan of Sita, Ram, Hanuman. But Gurudev said, when I saw them, I realized I am not theirs. I belong to someone else. So afterwards, he met Narottam Prabhu, after became Bhakti Kamal Madhusudan Goswami Maharaj. And there he heard the teachings of Chaitanya Mahaprabhu, this Gaurvani, this Bhaktivinoda Dada. So he became so much attracted. Then he began writing to his Gurudev, Nityalila Krishna Bhakti, Pragyan Kesava Goswami Maharaj. Even though Gurudev was married, some children were there, he had some good position in the police force. But still he had oceanic love for Gurudev, not some small love. Some people think Vaishnava, how can be cruel, give up wife, give up children, but only someone who has oceanic love, they can do like this. Understand? Love for some wife or family, this is just divided prem. But who can give their full love to Krishna, then everyone is satisfied. Yasmin tushti jagat tushti.
Who loves Bhagavan loves everyone. Who satisfies Krishna satisfies everyone. So Gurudev, very hard thing to do. Very hard, Krishna says, to break that attachment of family. But Krishna said to the gopis, you have done like that, therefore I cannot repay. So Guru Maharaj also, when he came to Param Gurudev, one time I asked Gurudev, when you met your Gurudev, what first thing you talked about? And the first thing Param Gurudev said to him, because before they were writing letters, when they first met, Param Gurudev said, I want you to take sannyas. First thing. How are you? How was your trip? Nothing. I want you to take sannyas. If Gurudev said that to us, what would we do? Run back to ISKCON. Then Gurudev, what answer he gave? If you want me to be sannyasi, I will be sannyasi. If you want me to be a king, I will be a king. If you want me to be a grihasta, I will be grihasta. If you want me to take off all my cloth and dance naked in the street, I will do that also. So from today, whatever affection I have for my wife, children, mother and father, I give everything on your lotus feet. And when he said that, Param Gurudev began to weep. So from beginning he had that surrender, that feeling for Guru Vaishnava, therefore everything came to him so easily. One who surrendered, everything comes easily. Then Gurudev stayed in Bengal, learned Bengali. He read Jaivadharma 50 or 60 times before he translated it. Just the Bengali, to become expert. Then 1956, I think, Param Gurudev sent him here to Mathura. And before everyone thought, who is Mahaprabhu? This is Bengali Bhagavan. This is Krishna. Not too many people in Braj have that concept. So Gurudev experienced a lot of opposition when he began preaching in Mathura, a lot of opposition. But gradually, so many years, he said that Brijavasi saw his character, his bhajan. One Brijavasi told me that when he came to Gurudev's room, Gurudev had very thin mattress. Then he said, Gurudev, how can you sleep on this very thin one? You should get one thick one. Then Gurudev said, if I do that, I won't get up in the morning. I'll be too comfortable. So they say, all Brijavasi too much respect Gurudev, especially all Brahmanas, all Pandits. Too much respect, too much affection for Gurudev. Especially he translated all these books of Bhaktivinoda Thakur, the Goswamis, Vishwanath Chakravarti. Before everything, only in Bangla, Sanskrit. But Gurudev put everything into Hindi Bhasa. So this North India, who's speaking Hindi afterwards, they will understand Gurudev's contribution. And Gurudev said, now no one understands me. Gurudev said, but in 100 years, when they read my books, they will understand who was Narayan Goswami. So we are very fortunate to somehow be connected with him. Somehow he accepted us. That is his mercy. Today we give pranams. Maharaj, who will speak? We are going no subject. Eleven from 12 o'clock, 12:30 school में पढ़ता है. वंदे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्द समर्दितं श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजन समायुक्तं वृन्दावन मनोहरम् हे राधिका प्रियजन हे ललिता गणानुग हे श्री नारायण देव जयति कीर्ति सर्वदा
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नित्य पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सस्वी भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज। नित्य पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। नित्य पृष्ठों विष्णुपाद अष्ट भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुग्रह वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए है की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन्मार्थी जन सभी के प्रति दंडवत धन्यवाद। आज जगत गुरु नित्य पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्भक्ति प्रज्ञान के सब से महाराज जी के श्री चरणाश्री नित्य पृष्ठों विष्णुपाद अष्टभक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज। नित्य पृष्ठों विष्णुपाद अष्टभक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के आविर्भाव और शुभ तिरुभाव तिथि। श्री गौड़ीय वेदांत समिति में 3 महाराज प्रसिद्ध हैं। भक्ति वेदांत त्रिकर्ण गोसाई महाराज, भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज, भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज। तीनों कैसे समझे मानो ब्रह्मा विष्णु महेश अथवा भक्ति ज्ञान वैराग्य ये त्रिपुटी है। पूजपात वामन गोसाई महाराज ब्रह्मा जी की तरह एक बार उनकी कथा सुन रहा था। देवानाम ब्रह्मा प्रथम संभूत विश्वस्य कर्ता भुवनस्य कर्ता विश्वस्य गुप्ता स सर्व विद्या ब्रह्म विद्या पृष्ठम स्वज्येष्ठ पुत्राय अर्थवाय प्राप्त। देवानाम प्रथमम लोक सनातन में कथा है ब्रह्मा जी देवताओं में सबसे पहले प्रकट हुए और वामन गोसाई महाराज पहले बचपन में ही मठ में चले। खूब छोटी अवस्था में 10-11 साल की उम्र में उनका चित्र भी एक जगह देखो, माता जी के साथ खड़े हैं, हरिनाम कर रहे हैं, बहुत छोटी अवस्था तब से चले। ब्रह्मा जी विश्व के कर्ता है, सृष्टि करते हैं और रक्षा भी करते हैं। और उनके पास जो विद्या, जो ज्ञान, जो रहस्य वो अपने पुत्रों में नारद आदि, कृष्ण है थे चतुर्मुख है कृष्ण से मुर्मुख, ब्रह्मा है थे नारद रेमत, नारद व्यास से परंपरा में दियो सको ज्ञान ब्रह्म विद्या भागवत विद्या। एक प्रकार से भक्ति स्वरूप पवन गोसाई महाराज सबके हृदय में भक्ति बीज बपन की। और मुझ पर नारायण गोसाई महाराज ज्ञान स्वरूप। कैसा ज्ञान? ऐसा वैसा ज्ञान नहीं, ब्रह्म जीव ज्ञान नहीं। ज्ञानम परम गुह्यम में जद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम स ग्रहण करितम में। पवन गोसाई महाराज भक्ति बीज दिए, सब हृदय में भक्ति दिए, क्योंकि ब्रह्मा जी का आदेश था, भगवान उनका आदेश दिया था कि आप ऐसा करोगे, जो मैं कथा सुना रहा हूं उसको सुनने के बाद आप इस कथा का वर्णन करेंगे और इस संकल्प से वर्णन करेंगे कि जथा हरो भगवती निर्नाम भक्ति भविष्यति सर्वात्मन अखिलाधारित संकल्प वर्णन। इस कथा के बाद सभी जीव भगवान की भक्ति करें, तो सबकी आत्मा सबका आधार है, ऐसा संकल्प लेकर के वर्णन करें। तो पूजपाल गोसाई वामन गोसाई में ऐसा संकल्प से भक्ति का वर्णन करते, भक्ति का बपन की।
कृपा नारायण गोसाई महाराज हमारे शिक्षा संन्यास गुरुदेव वो ज्ञान स्वरूप होकर के ज्ञानम परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वित। भक्ति एक विज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं, विज्ञान अनुभव की वस्तु, एक रहस्य है, रस से परिपूर्ण है। कितना उसमें भाव वैचित्र्य है, उन सब वैचित्र्यों को, रहस्यों को पूछपाठ हमारे शिक्षा गुरुदेव नारायण गोसाई महाराज जी प्रकट किए। वो विज्ञान सरहस्य तदअंग, उसका प्राप्ति के साधन, जितने भी पुष्पा बावन गोसाई महाराज जी के आश्रित शिष्य जन हैं, सब हृदय पर हाथ रख के इस बात को स्वीकार करते हैं कि महाराज जी ने हम लोग को कैसा पालन किया विष्णु की तरह। केवल दाल चावल सब्जी प्रसाद ये ठीक है, पालन है, लेकिन आत्मा का धर्म जो है भक्ति, शुद्ध तत्व हृदय में प्रतिष्ठित कराना है सबसे बड़ा दया, बड़ी दया। सारे वेद शास्त्र, सारे उपनिषद, सारे यज्ञ पुण्य हवन, ये सब मिलकर के एक पैसा के बराबर नहीं हो सकते जीव को भगवान में लगाना, स्थिर करना। सर्व विद्यां से जज्ञान से तपोदानानि चानक जीवा वे प्रदान से पुगिरन कलाम। आप कुछ बनाने को समझ सबको आज जितने भी देखेंगे, चाहे वो माधव महाराज हो, चाहे वो भक्तिवंत तीर्थ महाराज जी, चाहे पान महाराज, श्रीधर, जितने लोग गिरद गिरद में सब हैं, और केशव जी वहाँ कौड़िया वेदांत समिति में जितने भी ब्रह्मचारी सन्यासी, सब नारायण गोसाई महाराज की शिक्षा से, क्योंकि ब्रज में रहे और ब्रज का जो भाव, वो माधुर्य, जब मथुरा में केशव जी गौड़िया मठ में, वृंदावन रूप सनातन में, या और कहीं पर भी, विशेष करके दो जगह तो प्राय मथुरा में यदि 70% कथा बोलते तो 30% वृंदावन में उनकी कथा होती थी। और उन कथाओं में ऐसे डूब जाते थे, कुछ याद नहीं रहता। एकांतिनो नजस्य कंचनार्थम वाछन्ति जदवै भगवत प्रपन्ना अत्याद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र। महाराज जी का स्वभाव से कुछ नहीं जानते। भक्त लोग आते और उस कथा को गाते गाते खुद डूबते और भक्तों को डूबाते। विशेष करके भागवत का जो रसायन विरद भगवता में, उसमें जब गुरु जी डूबते तो कई महीनों तक डूबे रहते, क्योंकि रसायन में भागवत का जो सार है उसको निकाल करके रसायन तैयार किया गया। रसायन एक प्रकार का औषधि विशेष होता है, उसके सेवन से 80 साल के बुढ़ा भी 16 साल का युवक हो सकता है। और उसमें सब कई पदार्थ के धातुओं का, कई पदार्थ उसमें पदार्थों का सम्मिश्रण होता है। जब कुछ श्रेणी का रसायन होता है उसमें स्वर्ण भस्म, लौह भस्म और चांदी भस्म, कितने प्रकार के ऊंचे ऊंचे कीमती बहुमूल्य भस्म तैयार है। यहाँ पर रसायन में क्या है? भागवत के विशेष करके 5 जो भस्म, 5 जो कृष्ण के लिए जो कर्ण रसायन, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, जुगल गीत, भ्रमर गीत, ये 5 गीत तो पूरा रसायन आपको मिल ही जाएंगे। ये मूल है, मूल घटक है। और इसके अलावा ब्रह्म स्तुति से भी कुछ, उद्धव जी ने कुछ जो बोला वो शब्द, कृष्ण जब मथुरा गए तो वहां के नारियों ने जो ब्रज के उत्कर्ष का वर्णन किया वो संचारी। जब कोई रसायन बनता है तो उसमें मूल घटक होते हैं जो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, और साथ में कुछ थोड़े थोड़े और भी अंश उसमें मिलाया जाता है जिससे उसका शक्ति और बढ़ जाए। तो गुरु जी मूल रसायन तो अपना जो भाव का जो था, रमन मजरी रूप में जिस भाव में स्थित थे उस रसायन में डूबे थे, वो उनका स्थायी भाव था। लेकिन संचारी रूप में दास सक वात्सल भावों का भी उसमें सम्मिश्रण है।
बहुत बार बार बीच में आके उस रस को उद्दीपित कर देते। राधा कृष्ण कुंज में बहुत वार्तालाप कर रहे हैं, सब कुछ भूल चुके हैं, जहां पर किसी का कोई ऐसा कुछ नहीं। अचानक कान में कोई सखी मंजरी बोले जटिला आ रही है, एकदम से स्वेद से तर बेतर। कई बार जटिला एकदम सामने आ जाती है, मुखरा सामने आ जाती है, ये सब वात्सल रस वाले। और उसमें कई बार राजा जी को हाथ पकड़ के मुखरा या जटिला अपने घर को ले जाते खींच करके, तो उसमें एक प्रकार का रस होता है जो बार बार हर वर्णन में देखेंगे। जहां जहां वर्णन आते, विशेष करके रूप गोस्वामी जी अपने ग्रंथ में विदग माधव आदि में, जहां जहां प्रेम जब चरम सीमा को जाता है, बीच में थोड़ा सा बाधा आ गया और प्रेम को और उत्कंठा को बढ़ा दिया। राधा कृष्ण खड़े, मुखरा आ गई और मुखरा के सामने कृष्ण, मुखरा 90 साल के गिरदा है, किसी लता के ओट में खड़े हो गए, दूर भागे नहीं, और वहीं से राधा जी के आंचल खींच रहे। और मुखरा बहुत गुस्सा हो रहा है कि मेरे सामने कृष्ण को मैं छोड़ोगे नहीं। उसमें लीला बोलती है, अरे गुड़िया लगता है सिर में कुछ ऐसा कुछ खा पी लिया, सिर थोड़ा घूम गया तुम्हारा। एक कृष्ण राधा जी का आंचल नहीं खींच रहे हैं, कृष्ण तो आपके डर के मारे पता नहीं कहां जंगल में चले गए, कुछ पता नहीं कहां छूट गए। ये कौन खींच रहा है? बोले तमाल वृक्ष है, और वृक्ष में एक लता है, वो बार बार हिल रहा है, और हिल करके राधा जी के अंचल को हिला रहा है। वो काला काला तमाल को तुम कृष्ण समझ रहे, और उसमें जो लता है, जो उनकी भुज लता है, वो ये लता है तमाल की। तमाल में भी लता होता है, बेष्टित करके रहते हैं। वो लता बार बार उनके आंचल को ऐसे से कर रहे हैं, आंचल के साथ एकाकार हो गया, आंचल के साथ स्पर्श हो गया तो हिल रहा है। लता तो आंचल भी हिल रहे हैं, और तुम सोचते कृष्ण हिल रहा है। उसमें मुखरा कहते, मैं बुढ़िया हूं, मैं पागल हो गई, ऐसे ऐसे करके चली जाती। जाने के बाद इनको इतना हास होता है, इतना रस का उत्कर्ष होता है, इतना आनंद होता है। ऐसे जगह जगह पर जैसे गुरु जी सब वर्णन करते थे, 5 जो भाव है, 5 गोपियों का अलग अलग पूर्व राग में, जो वेणु गीत में जो सब कृष्ण के सौंदर्य माध्यम से का निरूपण किया। जब एक एक श्लोक को गुरु जी बोलते तो 4 दिन 5 दिन बोलते रहते। वेणु गीत का पहला कृष्ण के सौंदर्य को, क्योंकि उद्दीपन विभाव, कृष्ण दर्शन के बाद जो उद्दीपन होता है, आलंबर विभाव, एक उद्दीपन भी, तो कृष्ण प्रेम का आलंबर भी और उनके स्वरूप में उद्दीपन भी। तो समय सब वर्णन च्यूत प्रियाल परहस पकोद पलाव जमाना अनुपृक्त परिधान प्रवेशो मध्य बेरजुतरलम पशुपाल गोष्ठम रंगे जथा नटवरो कच गायमान। कृष्ण बलदेव का सौंदर्य वर्णन करे विश्व कृष्ण जी का, कैसे वो अपने को सजा रखे, आंख पे कोमल कोमल पत्तों से कैसे अपने मुकुट बनाए, मुकुट में लगा लिया केसों, और कई प्रकार के पुष्प, अलग अलग प्रकार के लाल, नीला, पीला, हरा, काला, ऐसे अनेक प्रकार के पुष्पों का गुच्छा बना के ये सब धारण करे। ये उद्दीपन, ये सब देखने के बाद में सास पुकार रही है, आ जाओ, जाता चलाओ, आटा पीसो, झाड़ू लगा, पोछा लगा। लेकिन कृष्ण का ऐसे सौंदर्य, ऐसे उनका रूप माधुरी, ऐसा श्रृंगार, गोपी लोग सुबह सुबह देख रहे, बोले जाता पाता तो फिर पीस लेंगे, रोटी फिर बना लेंगे। अगर कृष्ण चला गया तो ये दृश्य तो और बार बार नहीं आएगा। अच्छा न बताओ फल मिदम न परम विदाम, ये जीने का, आंखों का, इंद्रियों का फल तो ही है। ऐसे बोल को इतना तन्मय हो जाती है, कौन क्या बोल रहा है कोई याद नहीं, सास क्या बोल रहे, ससुर क्या बोल रहे, और परिवार पति सब क्या बोल रहे, भूल जाते। सास डंडा लेके आ रहे हैं, कितना ताड़न पर ताड़न होता है। कभी गुस्सा में 2 डंडा मार भी खाती है, लेकिन मार खाने के बाद उनके लिए हास्य हो जाता है। अरे बुढ़िया ने थोड़ा मार दिया, लेकिन उसका कोई व्यथा नहीं। वो जो दृश्य देखा, वो मलहम पट्टी में सब दर्द मिट गए। और कृष्ण के मन मुस्कान ने ये सारी व्यथा को भुला दिया। हमें तो कुछ पता नहीं चला कि कुछ मार नहीं पड़े। ऐसे कितने प्रकार से गुरु जी इन सब भावों को जब वर्णन करते और बोलते थे कि मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, 1-2 लोगों के लिए बोल रहा।
और एक कहने में दीदी, क्योंकि दीदी गुरु जी के साथ बहुत करीब में रहे। जब से आए तब से पहला बछड़ा और गाय, प्रथम बछड़ा को जो स्नेह देता है वो बाद वाले को उतना नहीं दे पाता, प्रथम जो होता है अलग ही होता है। इसलिए गुरु जी के प्रथम और इतने पास रहे और इनका स्वभाव, इनका गुण, जब उस सनातन में दीदी प्रथम आए आगे ठाकुर जी का श्रृंगार साधारण रूप में ऐसा था। दीदी अपने हाथ से बाजार गए, बढ़िया से कपड़ा खरीद के लाए। इनका जो स्वभाव होता है, गुण होता है, और इतना सुंदर उनका वस्त्र बनाए और फिर ठाकुर जी को धारण कराए, उनको कमर का बेल्ट बनाए, हाथ का बड़ा सुंदर वो कंगन बनाए, पैरों का सब श्रृंगार, पूरा कुंडल मुकुट आदि सब दिए अपनी तरफ से। मुझे प्रसन्न से त्रिकंग से महाराज एक दिन फूल बंगला हुआ तो दीदी ने फूलों से उनका कपड़ा वस्त्र बनाया, फूलों का श्रृंगार हुआ। जैसे कि देखें दीदी चंदन से ठाकुर जी को सजा दिया। एक दिन केवल क्या बोलते हैं आभूषणों से कृष्ण को सजा दिए, कोई वस्त्र नहीं, ऐसे फूलों से और ऐसे चमत्कार, ऐसे कलाकारी देखकर गुरु जी दंग रह जाते। बोलते इतना जीवन में मैं तो ऐसा कभी सोच नहीं सकता, ऐसा सजा सकता। प्रमाण है जब यहाँ पर दशावतार बन गया और कितने कितने बनते अभी बीच में सब सज जाते हैं। पहला दीदी का ही दिया हुआ तो उसी का अनुभव करके सब सज रहा है, सब चमत्कार। ऐसे सेवा को देख के गुरु जी इतना प्रसन्न होते थे और जो भी उनके अंदर में था पूरा हृदय से इनके हृदय में दिए। सामने बैठा बैठा के सब पढ़ाए जैसे बालक को पढ़ाते। और इनका मैंने देखा जब भी गुरु जी जहां भी होंगे, जब मथुरा जाएंगे हमको बोलेंगे जाओ बाजार जाओ, बढ़िया बढ़िया पटल, झींगा, ड्रम स्टिक, सहजनी जिसको सजना बोलते सहजन, और जो गुरु जी को पसंद है, ये 3-4 तो पसंद था, ले आओ। और मैं जाकर पूरा भर भर कर लाता। जब गुरु जी हम रूप सनातन हो या गोपीनाथ भवन हो तो 7 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, यहीं से सब सामान जाएगा, जितना भी साग सब्जी, और वहां भेजेंगे बाकी अपने हाथ से बनाएगा। ये जब झींगा पोस्ट, पटल पोस्ट और स्टिक पोस्ट सजना का पोस्ट के साथ बनाते। और कोई रसेदार सब्जी, कटहल का सब्जी एक बार नवद्वीप में बनाए। हम नृसिंहपल्ली से आए तो खीर और कटहल की सब्जी, फिर वहां से दीदी ने कटहल सब्जी बनाए। गुरु जी प्रसाद पा चुके थे, जब सब्जी ले गए उठ के नींद से उठे, थोड़ा नृसिंह जी का प्रसाद लिए, खीर भोग अपने हाथ से बनाए और कटहल पाए। बोले पहले तुम क्यों नहीं आया, आधा घंटा पहले आता। ऐसा गोवर्धन में दीदी बोले जल्दी जल्दी जाओ, दीदी गुरु जी प्रसाद पा के सो जाएंगे। जाते जाते देर हो गया, गुरु जी प्रसाद पा के हाथ धो रहे और मैं धड़ाधड़ अंदर गया, किसी को नहीं पूछा, क्योंकि माधव महाराज जी बाहर गेट में नहीं तो अंदर गुरु जी की सेवा में थे रसोई घर में, वो भी हमको नहीं पकड़ पाए, देख पाए, और फट कर गुरु जी के पास पहुंच गए। और जैसे बोले क्या टिफिन में 2-3 प्रकार के सब्जी, हाथ धो रहे, बोले ठीक है डालो, प्लेट में जो कटोरा प्लेट में जो पानी था उसको फेंक दिए, इसमें डालो, पोस्ट झींगा जो था दिए, और चावल कुछ पड़ा हुआ तो चावल को फिर उठाए, उसमें मिलाए, और 2-3 बार पानी के बाद पहले क्यों नहीं आए। जब हम एक कुर्ता पहनते जो इसको देख के गुरु जैसे पकड़ के बोलते बहुत बढ़िया, बोलते नहीं बहुत बढ़िया, कहाँ से लेते हो। इसलिए हर बार जब भी गुरु जी मिलते 4-5 बगल बंदी दीदी अपने हाथ से सीते कपड़ा, कभी यहाँ से लेते, कभी हरिदेव गुरु जी दीदी सीते, सीख उनको बना देते थे, खूब खुश हो। चाहे वो रूप गोस्वामी का तिथि हो, झूलन हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे और कोई ऐसा त्योहार, अगर वृंदावन में आएंगे तो एक बार कृष्ण बलराम मंदिर का जरूर भ्रमण करके जाएंगे। रक्षाबंधन दीदी अपने हाथ से राखी बनाते, साधारण एक पत्ता लिए, उसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसा उसको काट दे दिए और 10-20 पुष्प की कली उसमें लगा दिए धागा से, और इतना सुंदर बन जाता है, उनको हाथ में बनाता। हजारों राखी है लेकिन बार बार उसी राखी को देखो। हमें बहुत स्नेह, बहुत वर्णन सतीत है, उनके सामने जाने से कहीं भी दूर बैठ गया, ऐसा यहाँ खाने में वहाँ बड़े बड़े सन्यासी लोग बैठे हैं और सीनियर ब्रह्मचारी,
इधर उधर हटो, जगह दो। प्राय उनके सामने ही बैठता था। कभी कभी माधव महाराज जी और तीर्थ महाराज जी ऐसे हमको देखते, उन दोनों के बीच में मैं भी ऐसे बैठा हूँ। वो हमसे बहुत पहले आए हुए थे, 20 साल 25-30 साल पहले, पुराने सब सीनियर में, हमसे बहुत बाद में आया 25-30 साल। और ऐसे बैठते गुरु जी के सने में। इसके बीच मूल कारण था दिल। मैं आया और दूसरा कारण और बन गया कि हमारे गुरु जी ने भक्ति जीवनदान गोस्वामी महाराज, तो मैं उनका आश्रित हूँ। इस भाव से भी उनके मन में ये भाव आ गया था कि प्रभुपाद जी के आश्रित जन उनके हैं, एक तरह से मेरा गुरु भाई जैसा। इस ऐसा जान के भी सम्मान देते। एक बार आनंद धाम में व्यास पूजा और ऐसा परंपरा को पूजा करते करते एक माला हमें पहनाई। मैं छोटा बच्चा था, 97 के बाद 2009। मैं आश्चर्य हो गया, क्या ऐसे बहुत जब कभी जाते तो अपनी ओर से कुछ बोलते। एक बार गोवर्धन में सुबह में परिक्रमा में गए तो सबसे पूछ रहे, बता सकते हो जदुवंशियों का जो आपस में द्वंद्व हुआ और एक दूसरे को मारे और फिर शरीर त्याग करके चले गए, क्या है? तो सब कुछ ओपिनियन देने लगे। दामोदर महाराज भी था, जैसे पूछे क्या है? बोले सब बड़े बलवान थे इसलिए आपस में लड़े, कौन इनको मारता? गुरु जी बोले कारण हो सकता है लेकिन ये मूल कारण नहीं। तो मेरे से पूछे बताओ क्या है? सबके पूछने के बाद लास्ट में तो सुखदेव जी वहां पर शब्द का प्रयोग किए, माया विडम्बनम अभेहि जथा नटस्य। इस शब्द एक लाइन ने बोले गुरु जी को, माया विडम्बनम अभेहि जथा नटस्य। बोले हाँ, ये मेन कारण है। वास्तव में जदुवंशों का संहार नहीं हुआ, ये माया विडम्बनम अभेहि। जैसे कोई जादूगर अपने माया से ये दिखाता है कि वो सिर काट दिया है। कोई कथा थी चक्रवर्ती वाली टीका में दी है कि जादूगर ने अपने कला दिखाया और राजा ने उसको इनाम दिया, और उस इनाम में उनको 2 बच्चे आपस में लड़े और एक दूसरे को गर्दन काट दी गुस्से ना करके, और दोनों दुखी होकर वहां से चले गए। और फिर 15 दिन बाद पत्र आया कि पहला जो हमने कर्तव्य दिखाया उसका इनाम मिला, दूसरा जो हमने दिखाया उसका इनाम नहीं मिला। तो हमने अपने बालकों में जो सिर कटा हुआ दिखलाया वो वास्तव में सिर कटा नहीं था, तो हमारी जादूगरी थी। और अगर आप विश्वास न हो तो मैं आपसे मिले। राजा ने बुलाया, बुला और दोनों बालक माला लेकर के आए राजा के स्वागत। तो जैसे एक साधारण जादूगर सिर कटा हुआ दिखला देता है लेकिन सिर कटता नहीं, ऐसा लगता है, ऐसे भी यहाँ पर कृष्ण के जदुवंशों का संहार ऐसा समझे क्योंकि भगवान के पार्षद है, उनको कोई अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता। महाभारत में अर्जुन को कृष्ण के ऊपर जो अश्वत्थामा नारायण अस्त्र कितना से चलाए लेकिन किसी से उनका कोई क्षति नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सच्चिदानंद है सब। न जन्म कर्म बंधनम वैष्णवानां च विद्यते। तो मरे कहाँ हो? केवल देखने में लगा कि वो मर गए। जादूगरी की तरह जादूगर जैसे दिखाता है कि उसका सिर कट गया या काट दिया, लेकिन वो कटा हुआ नहीं। अगर काट दिया तो फिर बालक जी के कहां से आता है? तो भगवान के जोग माया ऐसा है। लोगों को ऐसा लगा कि आपस में लड़के मरे, लेकिन देखने वाले को ऐसा लगा लेकिन वो शरीर भगवत धाम चले, भगवान के साथ आए थे, भगवान के साथ चले गए। और एक कथा होने के 1 साल 9 महीना बाद गुरु जब प्रकट हो, मानो शिक्षा दे गए कि हम लोग आते और जाते हैं और अभी भी हैं, कभी दर्शन देते कभी दर्शन नहीं देते, लेकिन हमारा आत्यांतिक अभाव नहीं है। वैष्णवों का आत्यांतिक लय नहीं है, उनका ब्रह्म सायुज नहीं है कि भगवान में अत्यांत मिल गया, अब उनका क्या दर्शन होगा, ब्रह्म में मिल गए। क्योंकि वैष्णव तो भगवान के साथ नित्य लीला विलास सेवा में हो गए। आज भी रमन मंजरी के रूप में निकुंज में, सेवा कुंज में रमन मंजरी निकुंज में विराज है, अपने गुरु भाइयों के साथ अब स्थान कर रहे, कहीं जाते हैं। और संपूर्ण जीवन में गुरु जी ने हमें जो दिया, जितने प्रकार के अनुभव, भक्ति की वृत्ति, कितने प्रकार से, कितने दृष्टिकोणों से समझाए सरल तरीके से। जैसे बालक को पकड़ पकड़ के हाथ लिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है,
सिखाया जाता है, समझाया जाता है, तो उसके बदले में हमारे पास देने को क्या है? शास्त्र तो कहता है कि गुरु अगर अपने शिष्य को एक अक्षर भी ठीक से हृदय में उतार दे, क्योंकि एक अक्षर भी बहुत होता है। गोकर्ण ने जब कथा कहा तो एक अक्षर ही तो पिए। वहां आता है कि गोकर्ण की कथा के जो पूरी कथा सुने उनकी छोड़ो, गोकर्ण ने कथा अच्छा रोजे, गोकर्ण के मुंह से निकले कथा के अक्षर जो पिया वो माता के गर्भ में नहीं गए, एक अक्षर से उद्धार हो गया। और गुरु जी तो संपूर्ण जीवन कितने अक्षर, कितने श्लोक, कितनी कथा, क्या देख पूर्ण हो गए। कहते एक अक्षर भी गुरु अगर शिष्य को बता दे तो त्रिलोकी में सारे द्रव्य को दे करके भी उसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। एक मेवाक्षरम जस्तु गुरु शिष्यम प्रबोध है त्रिलोक्यम नास्ति द्रव्यम जद दत्वा चारिणी भवे। इसलिए हमारे पास कुछ देकर उरीन होने का नहीं है, और हम उरीन होना भी नहीं चाहेंगे, ऋणी बन के रहेंगे हमेशा के ऋणी। और जो ऋणी होता है उसे जो काम करा लो बोलेगा नहीं, क्योंकि भाई लिए हैं तो देना तो पड़ेगा। गुरु वैष्णव के हमारे पास बहुत ऋण है, वो हमको गधा बनाए, चाहे उल्लू बनाए, चाहे पट्ठा बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, मार भी राख भी, जो इच्छा तुम्हारा नित्य दास प्रति दुआ देकर फिर चीचा नहीं करे। फिर गुरु जी बोले इधर आओ, क्या बात है? कोई बात है? बहुत बात है, हजार बात है, और एक बात खाली बोल दिया इधर आओ, क्या बात है? एक बात में बात खत्म नहीं हो जाती, हजार बार भी बोलेंगे यहाँ आओ, यहाँ माथा फोड़ो, माथा तोड़ो, गिरो, तो हजार बार गिरना पड़ेगा, कुछ नहीं बोल करके चुपचाप। इसको बोलते शरणागत। षड्विधि शरणागत, लक्षणम अनुकूल षड्विधि शरणागति, उनके लिए हर समय अनुकूल भाव रखना, प्रतिकूल का वर्जन करना। अनुकूल से संपर्क प्रचिष्यति विश्वासो, वो हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे, उनको अपने रक्षक के रूप में वर्ण करना, पूरा आत्मनिक्षेप, सब जो कुछ है आपका है, मेरा कुछ नहीं, मेरा मेरे संबंधी जो मानस देह जो कुछ औकात पर हर समय विनय, हर समय काकुति वचन, काकुति ने बचने ने प्रार्था में मुहुर्मुहु, बार बार, जैसे रघुनूर गोस्वामी जी, हा देवी काकु भर गद गद आद बाचा जाचे निपत भुवि दंडवत उड्भटार्थी अस्य प्रसादम अवधस्य जनस्य कृत्वा गांधार्विके तब गणे गणनाम विधि। जैसे राधा जी के चरणों में जो मंजरी की जो प्रार्थना है, वो हमारी प्रार्थना से गुरु जी के चरणों में प्रथम हो। हा देवी रमन मंजरी गदगद्य वाचा जाचे निपत भुवि दंडवत उड्भटार्थी। ये हम अबुध को, इस जन को अपना जब वो मान लेंगे तब आगे की परंपरा भी अपना लेंगे, क्योंकि आगे वाले हमको नहीं जानते और हम भी उनको नहीं जानते, गुरु जी को जानते, गुरु जी उनको जानते। तो हम जिनको जानते उनको पकड़ेंगे और वो जिनको जानते उनके चरणों में हमको निवेदित कर देंगे, तभी कृष्ण और राधा रानी स्वीकार करेंगे, तभी हम सेवा पा सकते, जीवन सफल हो सकता है, सार्थक हो सकता है। तो गुरु जी इतना कुछ दिए हैं जिसको कहा करके शेष नहीं किया जाएगा। ये जो अष्टक आपने सुने, देवम नारायणम वंदे वृंदावन निवासिनम अनंत गुण भूषिता कोटि वात्सल्य, ये देव है, गुरुदेव कृष्ण के समान ही है। जीवन निस्तार लगे नंद सुत हरि भुवन प्रकाशपान गुरु रूप धरे। कृष्ण ही गुरु रूप में हम लोग कल्याण किया है, उनका ही प्रकाश है। जैसे सूर्य की किरण पूरे विश्व में प्रकाश देता है, लेकिन सूर्य की किरण उनकी शक्ति, ऐसे गुरु कृष्ण की शक्ति जो अनंत गुणों से भूषित थे, कोटि वात्सल्य, अपने पराये का भाव नहीं था, जो उनके शरण माए सबके प्रति उनका वात्सल्य। अपने के प्रति थोड़ा अधिक होता है, भगवान भी कहते जय भजंती तुम अगर मैं तो तुझा, भगवान कहते मैं भी सम में सम हूं, लेकिन जो जितना हमको समर्पण करे उसमें थोड़ा तो पक्षपात लेना ही पड़ेगा, लेकिन सबका मैं मंगल चाहता हूं। ऐसे गुरु जी भी थे,
सब पे प्रतिभाशाली भाव होता था। थोड़ा भी किसी में प्रीति देते एकदम गुरु जी पूरा उनको सर्वस्व निछावर करने को तैयार हो गए। बड़े सरल थे। अगर कोई गुरु वैष्णव से वंचित होता तो अपने दोष के कारण, अपने छल, अपने कपटता के कारण, वो बड़े सरल होते हैं। अगर उनके साथ हम भी सरलता पूर्वक पेश होंगे, जीवन धन हो जाएगा, वैष्णव बना देंगे। क्योंकि वैष्णव ही वैष्णव बना सकते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य होता है कि हम छल कपट करके उनसे मिलते हैं, उनको वंचित करना चाहते हैं, तो उनको आप वंचित नहीं कर सकते। अगर वंचित करने जाएंगे तो खुद वंचित हो। गति वंचित वंचक अचिंत्य पद, उनके चरण अचिंत्य है। यदि सरलता से जाएंगे तो सब कुछ पा लेंगे, और यदि वंचना करने जाएंगे तो पहले वंचित हो जाएंगे। क्योंकि हम उनको क्या वंचित करेंगे, उनको हमसे क्या चाहिए? लेना तो हमको है, उनको क्या है? वो तो अपने मस्ती में डूबे हुए हैं, वो तो रासलीला में नाच रहे, उसमें प्रविष्ट है। अगर वहां तक हमको जाना है, देखना है, तो सरल होकर जाना पड़ेगा। शिव जी थोड़ा सा कपटता किए, मतलब स्वयं गोपी बन के चले गए, कोई पहचान परिचय नहीं मिला, खूब उलझा लगा। जोग माया ने थोड़ा कृपा किया, थोड़ा सा स्थान मिला, लेकिन फिर भी पूरा नहीं मिल पाया। पूरा तो रूप मंजरी किसी को ऐसे को पकड़ना पड़ेगा जो राधा जी का ऐसे भाव से सेवा करे, वो लोग देंगे। लक्ष्मी जी को पूरा नहीं मिला, लेकिन शिव जी फिर भी थोड़ा पास में जाकर देखे। अगर पूरा देखना होगा तो इनका अनुगत करना पड़ेगा। वृषभानुपुरे जन्म नैवो जावट विवाह पे ब्रज गोपी भाव है वे स्वभाव आन भाव में नहीं। और ये सब भूल जाना पड़ेगा, तब उसे प्राप्त होगा। देखते देखते भूली को बात कर। जैसे गुरु वर्ग, हमारे गुरु जी, हमारे शिक्षा संन्यास दीक्षा गुरुदेव, इसमें डूबे रहते। ऐसे जैसा इच्छा गुरुदेव, ऐसा शिक्षा गुरुदेव। और बावन गोसाई महाराज जी कब नहीं थे, दोनों के बीच में जिनका द्वंद चलता, कथा चलती, महाराज बीच बीच में ऑब्जेक्शन करते, ऐसा नहीं होगा, कृष्ण को इतना छोटा नहीं कर सकते, उनको राधा जी का गुलाम नहीं बना सकते, उनका अपने मर्यादा है, व्यक्तित्व है। बोले जो भी है, जो सच है सो है, कृष्ण से पूछ लो। कृष्ण से प्रीति पाने के लिए कितना व्याकुल रहते हैं, वही बताए। जो राधा जी मान करते तो कृष्ण कभी राधा रानी मान कर बैठे, गुरु जी सुनाते थे। और इतना मान हो गया तो विशाखा सके बोलते, हे देवी थोड़ा मान कम करो। हम लोगों को बहुत दुख होता है, बहुत हो गया, कृष्ण इतना रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। उसमें राधा ने अपना नीला कमल, जो हाथ में कमल ले रखे, गुस्से में उनको जोर से मारा विशाखा। तो बड़ा ये है, ढीठ है, इनको कोई शर्म नहीं है, जो मर्जी से बोलती रहती। इसको शर्म से जो भी भाव का एक चित्र, उसमें कृष्ण बोल रहे हैं कि हे देवी, जैसे इन सखियों को आपने मारा, ऐसे एक तो हमको भी मारा। उनसे ना तो हमारे भाव के द्वारा थोड़ा ऊंचा नीचे भाव कर दो मेरे प्रति, उससे भी मैं मर जाऊंगा, मैं आपका हो जाऊंगा। इत्यादि ऐसे अनंत अनंत भावों का जहाँ प्रकाश, इन सब भाव में डूबे रहते हैं। कृष्ण बोले थोड़े राधा जी को थोड़ा कटाक्ष पाने के लिए सर्वस्व देने को तैयार है। कदा करी से सेम, थोड़ा मुस्कुरा दो, थोड़ा जो भी। अरे सुन के त्रिकम को सेम महाराज जी तो रसिक थे ना, और रस जब बरसाना जाते, अगर कोई बरसाना पर्वत की ओर बैठ गया पीठ करके, तो गुरु जी दीदी को बोलते इधर है, इधर बुला के बोलते, देखो जो विष्णु पर्वत की ओर बैठ करके बरसाना को देख रहे हैं, वो तो सब राधा रानी पक्ष के लोग, और जो उधर बैठ कर उल्टा देख रहे हैं, वो राधा रानी के लोग ने, कृष्ण पक्षी। त्रिकम महाराज उधर बैठे रहते थे। और फिर बावन गोसाई महाराज से पूछते, जब झगड़ा बढ़ जाती, हमारे गुरु से पूछते कि क्या किया जाए, ऐसे बोल रहे हैं और उनका ये कर रहे हैं। हमारे गुरु जी बोले कि मैं क्या बोलूं, बोलने से पहले तो कुछ ओपिनियन चाहिए। तो बावन गोसाई महाराज से पूछते, आप नहीं बोलूं, এটা কি হয়েছে? বাবা গোসাই মহারাজ বলে, আমি বেশি কিছু জানি না, ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলেছেন রাধা পাছে ছাড়ি যে জন সে জন, যে ভাবে সে ভাবে থাকে, আমি তো সাদা রাধা पक्षपाती कबू नहीं होता। जोर से ताली पड़ती। मतलब एक ऐसा युग था तो उसको याद करके रोमांच होता है, आनंद से हृदय भर जाता है। वो कथा, वो महाराजों का परस्पर का प्रेम, स्नेह, मैत्री, वो सब हम लोगों ने देखा, सुना। गुरु जी के जो कथा आविष्ट होकर के सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात में, जब मर्जी तब कथा। सुबह कथा कर रहे हैं, फिर
दोपहर में कथा करे, फिर 3 बजे दीदी आए तब कथा करे, कोई विस्कॉन वाले सब आते तब कथा करे, फिर शाम को कथा करे, फिर रात को कथा करे, और बीच में अगर कोई पूछ ले कभी भी तो सब समय उत्तर देने को तैयार। कितना उन्होंने दिया, कितनी कथा बोले, कितने एक शिष्य को, एक व्यक्ति को सत्य तत्व को समझाने के लिए प्रभुपाद जी बोलते 1000 गैलन खून भी कम पड़ जाता है एक जीव को शुद्ध रूप से भक्ति में लगाने के लिए। बहुत एनर्जी देना होता है। उसके बाद में जीव इतना दुर्भागा है, ये सब मिलने के बाद भी भाग जाता है, वंचित हो जाता है, वंचित। इसलिए गुरुदेव कृपा करिए कि आपकी कृपा से हम कभी वंचित न हो। आपने बहुत कुछ दिया। कोई तो पवन गोसाई महाराज है, कितने श्रेष्ठतम वैष्णव, कितना सरल थे। जब खड़गपुर जाते हैं तो हमारे गुरु जी को बताते नहीं। कोई वैष्णव कहीं जाता है तो टाइम तिथि डेट दे देते हैं कि मैं उस दिन आऊंगा। उन्हें मालूम है अगर सुनेंगे तो अपने हाथ से मेरा खाट बिछाने लग जाएंगे, गद्दा लगाने लग जाएंगे, तकिया लगाएंगे, चादर बिछाएंगे। वैष्णव आ रहे हैं, वैष्णव सेवा करूंगा, ऐसा उनमें भाव आ जाता था। हमारे गुरु वर्ग प्रभुपाद जी के जन, मैं उनसे सेवा लूंगा, इसलिए बोलना नहीं, चुपचाप हो जा। एक बार ऐसे हमारे गुरु जी नाट्य मंदिर में बैठ के आदमी कर रहे, अपने ध्यान में अपना स्मरण में अस्तावा बलिस्ता माला सब पाठ कर रहे, ठाकुर जी का दर्शन सुबह सुबह के समय, और अचानक हम उससे हमारे 5-10 लोगों के साथ वहाँ उपस्थित हो। और जैसे महाराज उनको देखे एकदम से क्या करूं, और वो आके गुरु जी तो दूर बैठे हैं, और जैसे उनको देखे तो दूर से दरवाजा में घुसते के साथ है साष्टांग प्रणाम के लिए नीचे गिरे। और जब प्रणाम करने तो गुरु जी तुरंत उठे, अवस्था है लेकिन एकदम कहां से शक्ति आई, दौड़ के गए। और जब दौड़ने लगे तो उनका जो बहिर्वास था वो थोड़ा सा बैठने में थोड़ा ढीला हो गया, वो निकल रहा, जो पहन रहे ये गिर रहा, अभी गिर जाएगा, कॉपिन में आ जाएंगे, देख हाथ से इसको पकड़े, गिरना नहीं चाहिए। उतना समय नहीं कि उनको बांधा जाए, और दूसरे हाथ से उनको ऐसे पकड़ के ऐसे गले से लगा, और उसके बाद फिर उनको ले गए, ये सब किए। ऐसे बड़े थे, जैसे पूर्व बावन गोसाई महाराज हमारे गुरु जी के तिरुभाव सुने एकदम भागे आए, कहीं चेन्नई में कहीं इलाज में थे, तुरंत आगे अपने हाथों सब किए। आपस में इतना प्रेम था, जबकि 3 कहा जाए लेकिन 3 नहीं थे, 4 थे। जैसे त्रिवेणी में 2 ही दिखता है, 3 होता है, इसलिए यहाँ 3 में 3 नहीं थे, 4 थे। हमारे गुरु जी बीच में दिखते थे समय पर, विशेष करके कार्तिक में, गौर पूर्णिमा में, और जब उनकी कथा होती थी, कथा का स्मरण करते थे, तब उन भावना में अभी भी आते। हमारे संन्यास गुरुदेव घर से हमारे गुरु जी के बीच में याद करते, जब भी राधा ने कथा बोलेंगे, भजामी राधा अरविंद नेत्रम स्मरामि राधा मधुर स्मितास्याम बदामी राधा करुणा भराधरम तत्व मनस्ति गतिर न काफी। गुरु जी का स्मरण आता था कि उनका ही भाव था, ये वो बोलते थे सब समय, हा देवी काकू भर तमेवास्मि, ये हमारे गुरु जी उच्चारण करते। इसलिए कुंचित नील केसी विदरत बिंबोष्टि चंद्रानने पीन श्रोणी तनोदरी अस्त्रम अद्भुते श्री राधे चारों भुज बन गई हम स्वरूपम आविष् गुरु। हमारे गुरु जी बोलते बोलते ऐसे रोते थे। गुरु जी कहते जब इनके श्लोकों को सुनता मेरे को बड़ा लोभ होता था, और मैं भी पीछे से फिर उसमें डूब गया। और बाद में जब प्रकट के समय आया गुरु जी बोले इस चीज को छोड़ना मत, विश्व में इसको दे के जाना, नहीं तो राधा जी का भाव समाप्त हो जाएगा। आप ये जो भाव को जगत में दे सकते हैं, मैं तब जा रहा हूं, मेरा समय हो चुका है, लेकिन इसको जीवित रखना। इसलिए गुरु जी बोलते थे मैं जनार्दन गोसाई महाराज जी के आदेश पालन करके पूरे विश्व में इस चीज का छीटा दी। इस तरह के ग्रंथ को प्रकाश कर गए सारे भाषा में, गीत गोविंद आदि और भागवत के सारे रहस्य रास पंचाध्याय आदि, ये सब प्रकाश हो के टीकाओं के साथ। कभी इस रस कभी इसमें भाव नहीं होगा, हमेशा रस ये भाव जो गोस्वामी लोग महापुरुष देना चाहते थे, राधा ने महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना के, वो पूरा विश्व तब भी जानते थे, आगे भी जाने, क्योंकि तब तो थोड़ा कठिन था, बांग्ला भाषा में था, कुछ लोग ही जान पाए, लेकिन हमारे गुरुदेव ने इसको हर भाषा में प्रकाशित करके पूरे विश्व को जना। राधा जी की महिमा प्रेम की सीमा, उनका रस, उनका सब कितना चरम है, कितना परम है, ये जब पढ़ेंगे अनुभव में आएगा। बहुत कुछ दिए हैं, जुग जुग तो बोल करके शेष नहीं किया जाएगा, अनंत है, अपार है। तो केवल प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावने
जय नितला परिष्टोम विष्णुपाद भक्तिदान नारायण गोसाई महाराज श्री गुरुदेव सु आविर्भाव तिथि की जय। जय भक्तिदान बामन गोसाई महाराज सु आविर्भाव तिथि की जय। भक्तिदान सु तिरुभाव तिथि की जय। सुरपान गुरु वर्ग की जय। श्री गौर प्रेमानंदे। आरती आरती गुरुदेव बड़ कृपा करे रुद्र में दिया गुरुदेव बड़ कृपा करे दिला मरे ब्रजे बसी हरि नाम करो हरि नाम बड़ कृपा हरि नाम करो